Are you listening, my boys? Yes. Yes, sir. Okay. So yesterday we are talking about the crisis and crisis proneness. So you know that about the crisis. Crisis is an integral component of the everyday life situation. So we are suffering with the various types of the disease or disorder, and we are having the some of the that mental stress or something tension in our mind because of COVID-19 or some other type aspect of the disorder. So that is the one of the crisis. There is our loved one is going to become death, going to die, and something like is this like situation is pandemic is going on day by day, so that is one of the crisis. So what type of crisis intervention we have to follow in the situation of the crisis? So crisis intervention is one of the important aspect to prevent the mental illness because of the long standing problem make the person totally incapable of handling the situation. So this is the crisis intervention definition of the crisis. Yesterday we have discussed about this crisis proneness. Proneness means that is the person is become prone to get this type of the crisis. So what type of problem the person is facing when the person is having the crisis? So what are the characteristics of the crisis? There are universal, personal, acute, and bring change, time limited. So these all five characteristics of the crisis. Then there are types of the crisis. There are three types of the crisis: maturational crisis, situational crisis, social crisis. And social crisis is also again that is known as adventitious crisis. So maturational crisis, according to the growth and development from the stage from the person's life, is become the adaptability and adjustment with the new situation or new responsibility. So that become is known as maturational crisis. Maturational crisis का मतलब होता है कि beginning from the adolescent से start होकर के till the death, when the person is growing day by day, then person should have the maturity, and according to the maturity the person is having the particular crisis stage. Then situational crisis, you can see the situation. It depends on the situation when the person is having the unexpected event in the personal life. Sudden कोई भी event हो जाता है, sudden any particular incident develop हो जाता है, तो in that condition person is getting the crisis. So it may happen in type of grief or loss. So person can create the disequilibrium by the threatening one sense of biological, social and psychological integrity, just like a loss of job, divorce, abortion, the death of the loved one, physical and mental illness, poor performance in the school, etc. The social crisis, you can see the social crisis where the large segment of the society get affected by the accidental, uncommon and unplanned, unanticipated events such as natural disaster, hurricane, flood, fire, earthquake, war, riots, crime of the violence and pandemic. So these all may happen in comes in the social crisis. कौन? अच्छा अच्छा प्रियंका मैडम. So it is a type of crisis. That is a social crisis. This crisis is become from the social situation. Then there are phases of the crisis. According to the Kaplan, there are 4 phases of the crisis: phase 1, phase 2, phase 3, and phase 4. Yesterday we have discussed initial threat, continuing threat becomes a crisis, crisis intensifies to panic, serious disorganization, and assault. So these all 4 stages of the crisis, which is given by the Kaplan in 1964. Initial phase, we are talking about the initial phase, that is the people are faced with the problem and conflict. When a person is having any type of problem or any conflict, so they may have what type of fear, that is the level of anxiety, and they are having the when they are not subsiding by the defense mechanism, when the person is using the defense mechanism just like compensation, rationalization and denial, and the anxiety or fear is not reducing at the lower level, so the problem is not resolving, the threat it disappear and there is no crisis.
Then again, continuing threat the become a crisis. Ineffectiveness of the phase 1. phase 1 जब इफेक्टिव हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, डिसऑर्गेनाइजेशन. सो डिसऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या होता है, जो एंजाइटी होती है वो ज़्यादा बढ़ने लगती है और एंजाइटी बढ़ करके सीरियस लेवल तक पहुंच जाती है. और सीरियस लेवल तक पहुंचने के बाद पर्सन के अंदर क्या होता है, थिंकिंग के अंदर डिफिकल्टी होती है, स्लीपिंग पैटर्न में डिस्टर्बेंस हो जाता है, फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं कर पाता. उस कंडीशन में क्या यूज़ करता है, ट्रायल और एरर. ट्रायल और एरर किस लिए यूज करता है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे और अपने इमोशनल इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करे. अब थर्ड फेज के अंदर क्या होगा कि जब ये सेकंड फेज फेल हो जाती है तो ट्रायल और एरर अटेम्प्ट फेल हो जाता है, तो उस कंडीशन में एंजाइटी बहुत ज़्यादा सीवियर और पैनिक हो जाती है. तो पर्सन के अंदर वो इमोबिलाइज, डर के साथ इमोबिलाइज होता है पर्सन. इसमें क्राइसिस रीडिफाइन करता है द प्रॉब्लम को, अटैक इट फ्रॉम ए न्यू एंगल एंड ट्राई अगेन टू फाइंड ए सॉल्यूशन. तो अगेन वो सर्च करता है कि किस सिचुएशन, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकें एक नए वे के अंदर, नए पर्टिकुलर इंटरवेंशंस को यूज करते हुए. सो दिस इज द क्राइसिस इंटेंसिफाइज टू द पैनिक. अगेन फेज थर्ड फेल हो जाती है तो फेज 4 इज वर्किंग. इसमें क्या होता है कि जब प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है, कोपिंग स्किल्स आर इफेक्टिव होती हैं, तो एंजाइटी और ज़्यादा सीवियर हो जाती है, जिससे पर्सन के अंदर डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, मोर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है और वायलेंस हो जाता है अगेंस्ट themselves to the become a he will go for the suicide or homicide activity. So that is a fourth phase. So there are signs and symptoms of the crisis just like free floating anxiety, depression, anger, guilt, neglect his responsibilities, become irrational, blame others. So these all 5 signs and symptoms of the crisis. फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी होती है, कभी भी एंजाइटी हो सकती है किसी भी सिचुएशन के अंदर, कभी भी डिप्रेशन हो सकता है, एंगर, गिल्ट फील कर सकता है, जो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको वो निगलेक्ट करता है, इरेशनल होता है हर चीज़ में, अनरियलिस्टिक होता है, दूसरों पर ब्लेम करता है. सो नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ द क्राइसिस. प्रोसेस ऑफ क्राइसिस के अंदर हम बात कर रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ द क्राइसिस. हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, किसी भी क्राइसिस को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं. इट इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस वी आर यूजिंग टू रिजॉल्व द क्राइसिस. सो फर्स्ट रिजोल्यूशन के लिए क्राइसिस को हमें क्या करना है, हेल्दी रिजोल्यूशन यूज करना है फॉर द क्राइसिस, जो डिपेंड करता है 3 फैक्टर पर. हमें हेल्दी रिजोल्यूशन यूज करना है क्राइसिस सिचुएशन के अंदर जो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है. देयर आर 3 फैक्टर्स. फर्स्ट फैक्टर है आपका रियलिस्टिक फैक्टर, सेकंड इज द अवेलेबल सपोर्ट सिस्टम एंड थर्ड वन इज द कोपिंग मैकेनिज्म आर अवेलेबल. अब इसमें 3 चीजें हैं. आपका रियलिस्टिक अप्रेजल है. रियलिस्टिक अप्रेजल का मतलब होता है जो इवेंट हो रहा है और हमारे उस इवेंट के प्रति जो एंजाइटी हो रही है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फीलिंग ऑफ एंजाइटी और इवेंट. सो दैट इज अ रियलिस्टिक अप्रेजल कैन बी यूज्ड इन द healthy approach in the crisis situation. Second is the available of the support system. Support system होना बहुत जरूरी है. Supportive psychotherapy we are applying in the particular situation. So available of the support system. Support system में आप देख सकते हो, मैं पिछली बार बात कर रहा था, support system में कौन हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं और सोशल पीयर्स भी हो सकते हैं. So these are the some of the social support system we are using when in the situation of the crisis. कोपिंग मैकेनिज्म, कोपिंग मेजर जो है आपके डिफेंस मैकेनिज्म आप यूज कर सकते हो, बॉडी मैकेनिज्म यूज कर सकते हो. उस सिचुएशन के अंदर आप उस क्राइसिस को रिजॉल्व कर सकते हो. So there are 3 ways by which the individual may resolve the. Hello, Silpi, what is it? Silpi, please mute the audio. नहीं, सारी तकलीफ नहीं रहती है. कि कौन सा रास्ता भी लेके जा रहे थे मैं, जगत में जाना है और पे जाना है, जगत ही जाना है. जगत में ये जगत पे चालू हो चुका है. क्लास को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया.
क्या है शिल्पी, आज इसकी एब्सेंट लगाऊंगा आज मैं किसी भी हालत में। So there are three ways by which the individual may resolve the crisis. There are three types of the particular interventional aspect of the things. So where we can resolve the crisis: pseudo resolution, unsuccessful resolution, and successful resolution. So there are three aspects we have to resolve the crisis. We are using nowadays. First is the pseudo resolution. Pseudo resolution means होता है in this the client uses the repression, ignore the incident, intense emotions associated with it, resulting in the client functioning at the same earlier level. So this is the one of the pseudo resolution. Pseudo resolution means क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो क्या करता है, रिप्रेशन जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो यूज करता है। डिफेंस मैकेनिज्म जो रिप्रेशन होता है उसको यूज करता है, और जो इंसिडेंट हुआ है जो हमारे इमोशनल फीलिंग से एसोसिएटेड है, जो इंसिडेंट है उसको इग्नोर किया जाता है। उसके बाद इसमें जो क्लाइंट जो फंक्शन करता है वो उसके हिसाब से करता है, जो उसके बाद क्या उसके साथ होने वाला है उससे पहले वो प्रिपेयर करता है अपने आप को। हेलो हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, ठीक है सर, ओके सर, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। So in this crisis, in this crisis the client uses the repression जो डिफेंस मैकेनिज्म वो यूज करता है, जो किसी भी इमोशनल कंडीशन से एसोसिएटेड है, दैट इंसिडेंट उसको इग्नोर करता है। जिसके बाद पर्सन जो होता है वो जैसे पहले जैसा होता है, पर्सन पहले जैसे अपने नॉर्मल फंक्शन की तरह वो अपनी लाइफ को इजीली सर्वाइव कर रहा था, उसी सिचुएशन में वो आ सकता है। सो दैट इज अ स्यूडो रिजोल्यूशन। जैसे हम अभी आपकी अभी सिचुएशन क्या है, कोविड है, हम चाहते हैं कि हमारी जो पहले वाली सिचुएशन है वो वापस से आ जाए और ये जो महामारी है ये कम्प्लीटली खत्म हो जाए। तो दैट इज अ अर्लियर स्टेज में आप आना चाहते हो, तो उसके लिए जो भी इमोशनल स्टेट है, ठीक है, उसको आप इग्नोर करना चाहते हो और रिप्रेशन यूज करना चाहते हो, दैट इज स्यूडो रिजोल्यूशन। बट इन द फ्यूचर इफ व्हेन ए क्राइसिस ऑकर, सेम क्राइसिस यदि फ्यूचर में होती है तो हमारी जो रिप्रेस्ड फीलिंग्स है वो वापस से हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस के अंदर आ जाएगी और हमें उससे क्या होगा, क्राइसिस ज़्यादा होगा। जैसे कि हमारे अंदर कोई भी फीलिंग्स होती है जो हमारे लिए बैड फीलिंग्स है, जो हमारे काफ़ी पहले थी, हमारे साथ जो भी इंसिडेंट हुआ था उस इंसिडेंट को यदि हम फ्यूचर में याद करेंगे तो उससे हमें क्या होता है कि वो धीरे धीरे फीलिंग्स जो है वो आने लगती है और हमें ज़्यादा क्राइसिस होने लगता है, ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है। इस सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं कि उस सिचुएशन को कैसे रिजॉल्व करना है, ठीक है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए बड़ी डिफिकल्टी महसूस करनी पड़ती है, तो हमें स्यूडो रिजोल्यूशन एक फॉर्मूला होता है उसको हमें यूज करना पड़ता है इसके लिए। सो दैट इज अ स्यूडो रिजोल्यूशन। नेक्स्ट इज द अनसक्सेसफुल रिजोल्यूशन। अनसक्सेसफुल रिजोल्यूशन का मतलब होता है जो विक्टिम होता है, द विक्टिम रादर देन एक्सेप्टिंग द लॉस, द रिकॉग्नाइजिंग हिज लाइफ कीप्स रिफ्लेक्टिंग ओवर द लॉस। जो विक्टिम होता है, जो विक्टिम ऑलरेडी सफर हो चुका है सिचुएशन से, उसने वो लॉस देखा है और अपनी लाइफ को उसने रिकॉग्नाइज किया है, तो वो उस लॉस को बार बार क्या करता है, अपने माइंड के अंदर रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट करता है तो सिचुएशन को हम कहते हैं अनसक्सेसफुल रिजोल्यूशन। बार बार हम उस चीज को ग्रीफ के अंदर रिमाइंड करें। सो दैट इज अ प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ रिएक्शन विच रिजल्ट इन द डिप्रेशन। बार बार हम एक ही सिचुएशन को बार बार याद करके, एक ही लॉस को हम बार बार याद करके हम याद करें, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, पर्सन के अंदर जो ग्रीफ रिएक्शन डेवलप हो जाती है जिससे हमें डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दैट इज नोन एज अनसक्सेसफुल रिजोल्यूशन। नाउ इज द थर्ड के अंदर सक्सेसफुल रिजोल्यूशन। सक्सेसफुल रिजोल्यूशन के अंदर क्या होता है, द विक्टिम में गो
थ्रू द वेरियस फेजेस ऑफ द क्राइसिस। अब इसमें विक्टिम जो होता है वो डिफरेंट फेजेस के अंदर, जैसे कि आपकी 4 स्टेज हैं, 4 स्टेजों के अंदर वो विक्टिम जो होता है वो धीरे धीरे उन स्टेजों के अंदर अपीयर होता है या उसको एंटर करता है। उसके बाद जब वो थर्ड स्टेज के अंदर पहुंचता है, थर्ड फेज के अंदर पहुंचता है, जहां पर कोपिंग मैकेनिज्म आर यूटिलाइजिंग टू रिजॉल्व द क्राइसिस सिचुएशन, जहां उसको उन कोपिंग मेजर्स को यूटिलाइज करना है जिससे कि वो क्राइसिस सिचुएशन को रिजॉल्व कर सके। सो वो थर्ड जैसे विक्टिम, तो दैट इज नोन एज सक्सेसफुल रिजोल्यूशन। विक्टिम क्या करता है, धीरे धीरे डिफरेंट फेजेस के अंदर एंट्री करता है। जब वो तीसरी स्टेज तक पहुंचता है तो वो कोपिंग मैकेनिज्म यूज करता है और कोपिंग मैकेनिज्म यूज करके जो क्राइसिस सिचुएशन होती है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। दैट इज सक्सेसफुल resolution. So there are 3 resolution of the crisis. So now we have to move on the crisis intervention. In the crisis intervention is a type of techniques. जो क्राइसिस वाला है, क्राइसिस इंटरवेंशन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ आप इसको अच्छी तरह से टॉपिक को तैयार करके ले जाइए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्राइसिस इंटरवेंशन की हम बात करेंगे। तो क्राइसिस इंटरवेंशन इज ए टाइप ऑफ टेक्निक्स वी आर यूजिंग टू हेल्प द इंडिविजुअल और फैमिली टू अंडरस्टैंड एंड कोप विद द इंटेंस फीलिंग्स दैट आर टिपिकल ऑफ ए क्राइसिस। क्राइसिस इंटरवेंशन का मतलब होता है कि हमें ये क्राइसिस इंटरवेंशन एक प्रकार से टेक्निक्स होती है जो हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, जिससे कि हमारे अंदर जो इंटेंस फीलिंग्स होती हैं उनको हम कैसे कोप करें, कैसे अडॉप्ट करें, ठीक है, और क्राइसिस से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। दैट इज नोन एज क्राइसिस इंटरवेंशन। सो इस कंडीशन में नर्सेज फंक्शन इज एज ए पार्ट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी टीम in the use of the crisis intervention as a therapeutic modality की तरह इसको क्राइसिस इंटरवेंशन टेक्निक को यूज करते हुए नर्सेज एक इंटरडिसिप्लिनरी टीम के अंदर एक पार्ट जो होता है उसको उसके अंदर इन्वॉल्व होती है उसमें। सो गोल ऑफ द क्राइसिस इंटरवेंशन इज टू स्टेबलाइज द सिचुएशन एंड रिस्टोर द प्री क्राइसिस लेवल ऑफ द फंक्शनिंग। जो सिचुएशन होती है उसको हम स्टेबलाइज करते हैं और जो प्री क्राइसिस लेवल ऑफ फंक्शनिंग होती है उसको वापस से रिस्टोर करते हैं। सो दिस इज द क्राइसिस इंटरवेंशंस। नाउ नेक्स्ट इज द एम्स ऑफ द क्राइसिस इंटरवेंशंस। तो एम्स ऑफ द क्राइसिस इंटरवेंशंस की हम बात करें, सो टू प्रोवाइड ए करेक्ट कॉग्निटिव परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन। क्राइसिस इंटरवेंशंस के एम क्या है कि ये एक हमें अच्छी कॉग्निटिव परसेप्शन की फीलिंग कराता है, करेक्ट करता है हमारे अंदर कॉग्निटिव। यदि हमारे अंदर इम्बैलेंस कॉग्निटिव या इम्पेयर्ड कॉग्निटिव प्रोसेस चल रहा है तो हमारा जो कॉग्निटिव परसेप्शन होता है उसको करेक्ट करने में हेल्पफुल होती है। दूसरा क्या होती है कि जो हमारे अंदर इंटेंस फीलिंग्स होती है या ओवरवेलमिंग फीलिंग्स होती है जो क्राइसिस से एसोसिएटेड होती है उसको मैनेज करने में असिस्ट करती है, हेल्पफुल होती है। दीज आर द 2 एम ऑफ द क्राइसिस इंटरवेंशन। फर्स्ट क्या है आपका, जो आपका कॉग्निटिव परसेप्शन है उसको करेक्ट करती है। दूसरा क्या होता है कि किसी भी क्राइसिस की वजह से पर्सन के अंदर इंटेंस और ओवरवेलमिंग फीलिंग्स होती है उसको मैनेज करने में हेल्पफुल होती है। सो दीज आर द 2 एम ऑफ द क्राइसिस इंटरवेंशन। So there are some of the principles of the crisis intervention. Principles of the crisis intervention की हम बात करें तो first is the specific, second is the catharsis, third is the reassurance, fourth is the empathetic understanding, and fifth one is adequate time. The next is the realistic appraisal, empowerment, then confrontation and time bounded. So these all principles of the crisis intervention. We'll study in the one by one. Specific. So what do you mean by the specific? So be specific. Generally the term we are using for be specific means be positive and be specific. Use concise statement and avoid overwhelming the patient with the irrelevant questions or excessive detail. So overwhelming the patient and the irrelevant questions and any intense feelings should be avoided by the person. So person should be a specific. That is one of the statement.
Now we have to see the catharsis. Catharsis means encourage the expression of the feelings. Person को encourage करना कि उसकी feelings क्या है. So help the person to know that other in the similar situation have experienced comparable emotions. दोनों चीज़ों को कंपेराइज कराते हैं कि सेम सिचुएशन सामने वाले की है और सेम सिचुएशन आपकी है, आप दोनों के अंदर सेम सिचुएशन है, तो उसको आप कैसे कंपैरिजन करते हो, कैसे अपने आप को फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, दैट इज द नॉन एज कैथारसिस. रीअश्योरेंस का मतलब होता है काम एंड कंट्रोल्ड अप्रोच, रीअश्योर द पर्सन. रीअश्योरेंस का मतलब होता है कि वी आर गिविंग the psychological support to the patient if any particular conditions are arising or any crisis situation is arising. We are providing the calm and quiet and controlled approach. We are the reassuring the patient. Empathetic understanding, we have to understand the feelings of the person, so we have to clarify all the doubts. We are paraphrasing and reflection are effective strategy we are using in the empathetic understanding of the crisis situation. Adequate time, we are allowing the sufficient time for the individual to involve in the process information and ask the question, so he can explore the problem and he can explore the total information about himself, and he can have some of the adequate time. He should have adequate time for the exploration. Realistic appraisal clarify distortion by getting the person to look at the situation realistically, focus on what can be changed versus what cannot. So realistic approach can be used. The unrealistic approach cannot be used in the particular situation. So what are the clarify the distortion, any disturbances or any problems should be clarified by getting the person to look at the situation realistically and focus on what he can change and what he cannot. क्या चेंज कर सकता है और क्या चेंज नहीं कर सकता, उस सिचुएशन के बारे में रियलिस्टिकली हम उसको एक्सपोज कराते हैं, क्लैरिफाई कराते हैं डाउट्स को. दैट इज नोन एज realistic appraisal. Now is the empowerment. Empowerment means empower the person by allowing them to make the informed choices. So empower देना, person को empower देना. empower के अंदर हम patient को उसको choices के अंदर हम उनको inform करते हैं, उसको करते हैं कि क्या आपकी choice है. Better choice should be chosen by the each and every individual independently. So that is the empowerment. Confrontation. What is the confrontation? Confrontation is assist the person in confronting. That is the handling the reality. Confronting is again known as handling the reality. That is assisting the patient and confront the situation. What are the situation is arising in day-to-day life, so that we have to confront the person and so that he can handle in a better way and better approach. Time bounded. So in the time bounded, we can encourage the person to focus on one implication at a time. So वो encourage करेंगे person को कि उसके अंदर particular time के अंदर किस तरह के implication वो उन implication के अंदर focus कर सकता है. So we are encouraging. It should be in the time bounded. So next is the approaches of the crisis intervention. Then approaches of the crisis intervention will discuss in the later on.